پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی کرونا وائرس کی چوتھی لہر اور متاثر ہوا سب سے زیادہ کراچی اور کراچی کی تاجر برادری. سراپا احتجاج ہے, دیہڑی دار طبقہ سراپا احتجاج ہے اور یہاں کے سٹیک ہولڈرز تحفظات کا شکار ہیں. ان کے تحفظات کا ازالہ کون کرے گا؟ وفاق سندھ حکومت نے ذمہ داری ڈال دیا اور سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ وفاق کی ذمہ داری ہے. عام عوام کو کنفیوز کیا جا رہا ہے اور اس کنفیوژن کے اندر بیچارے پس رہے ہیں عام شہری کراچی کے, اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کراچی کو کون کر رہا ہے. نہ تو سندھ حکومت کر رہی ہے اور نہ ہی وفاق, لیکن یہ شہر جو 90% صوبے کو ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے. اور حالیہ جو بجٹ پیش ہوا اس بجٹ میں بھی ٹیکس کلیکشن پنجاب سے زیادہ, یعنی سندھ حکومت کو جو رائٹس ملتے ہیں اگر ہم صوبہ سندھ کی بات کریں تو وہ پنجاب سے کم ہیں, لیکن اس کے باوجود یہاں سے فنڈز اور ٹیکس جو ہے وہ سب سے زیادہ اکٹھا ہوا. شمشاد صدیقی صاحب, بزنس کو آپ سمجھتے بھی ہیں, کراچی ابھی بھی ان تمام تر زیادتیوں کے باوجود پورے پاکستان کو چلا رہا ہے, پورے صوبے کو چلا رہا ہے. اس کے باوجود اس کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے اور کیوں حکومتی ترجیحات میں شامل نہیں ہے, چاہے صوبے کی بات کریں یا وفاق کی؟ دیکھیں یہ تو کچھ ذرائع میں اس کی تصدیق تو نہیں کر پاتا, لیکن حالیہ دورہ جو ہوا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا امریکہ, اور اس کے بعد آتے ہی انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے پاکستان کی معیشت کے خلاف ہیں. اچھا, کیونکہ آپ نے جیسا خود ہی کہا کہ 70% ریونیو جو ہے وہ کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. اگر آپ یہاں کی انڈسٹری کو تباہ کر دیں گے تو ظاہر ہے پاکستان کی معیشت جس نے تھوڑی سی جنبش لی ہے بہتری کی طرف, گروتھ ریٹ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے, وہ ایک دفعہ پھر وہ خراب ہو جائے گی. اور ظاہر ہے اس میں پھر جو یقین دہانیاں کرا کے آئے ہوں گے امریکن سرکار کو, جو پہلے بھی ان کی پارٹی کراتی رہی ہے کہ بھئی ہم آپ کے پورے ایجنڈے پہ جو عمل درآمد کریں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سازش ہے. دیکھیں کرونا روکنے کی کوئی ہمیں کوشش تو حکومت کی طرف سے آپ یہ دیکھیں, شکر ہے کہ بھارت کی طرف سے یہاں پہ کرونا نہیں آیا. خدا نہ خواستہ اگر وہ آ جاتا پھر تو ہم اس کو کنٹرول کر, اس لیے کہ کچھ تیاری نہیں ہے ان کی. ہمارے پاس ابھی کراچی میں دیکھیں 20 لاکھ تو غیر ملکی ہیں, آپ کو پتہ ہے, جس میں بنگالی ہیں اور دوسرے لوگ ہیں. ان کے پاس NIC نہیں ہے, آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے, ان کو تو وہ ویکسین لگ ہی نہیں رہی. حکومت نے کبھی سوچا, اور ریکارڈ پہ بھی نہیں ہے وہ. اچھا 3 کروڑ کی آبادی میں انہوں نے صرف 11 سینٹر بنائے ہوئے ہیں. آج میں نے دیکھا کہ بھئی ہم نے نئے سینٹر بنا دیے, میں نے دیکھا وہی خالق دینا حال, وہی جناب گورنمنٹ ہاسپٹل, وہی. اور آج جو اس وقت بجائے کرونا روکنے کے, کرونا کا پھیلاؤ ان سینٹر سے ہو رہا ہے. اگر آپ جا کے دیکھیں وہاں جس طرح سے رش لگا ہوا ہے, حکومت نظر ہی نہیں آتی کہیں کو. بھائی یہاں تو ان کو آسانی سے, اگر یہاں کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان سے بیٹھ کے مشورہ کرتے, کراچی کے اندر UCs جو ہیں وہ تقریباً 209 UCs ہیں. ہر UC میں ایک چھوٹا سا سینٹر بنتے, یہ کتنی آسانی سے. اب آپ دیکھیں وہ 4 سینٹر 5 سینٹر ہے, اور آج صبح کہیں پہ فارم نہیں پہنچے, کہیں ویکسین نہیں پہنچی. ایک یعنی نااہل حکومت جو ہے وہ یہاں پہ اس وقت قائم ہے سندھ کے اوپر, اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کہاں یہ صبح جا کے ٹھہرے گا. لیکن اب میں نے جیسے شروع میں بھی کہا ہے کہ یہ بھائی جان اب یہ لاوا پکڑا ہے, یہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. اور یہ نہ صرف یہ کہ سندھ حکومت کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. کیونکہ کراچی کی تاریخ رہی ہے کہ کراچی میں جب بھی پاکستان میں حکومتیں چینج ہوئی ہیں, کوئی سیاسی تحریک چلی ہے, وہ کراچی سے چلتی ہے. اور اب جو ہے نا آہستہ آہستہ لوگوں کے ظلم بڑھتے جا رہے ہیں. یار آپ ویڈیوز دیکھیں, کل خاتون بیچاری وہ گئی ہے پوری فیملی کو لے کے, وہ کہتی ہے صبح 10 بجے گئی تھی میں, رات 11 بجے واپس آئی ہوں بغیر ویکسین لگائے. اور انہوں نے شمشاد صاحب ایک بات تو ہے, ویکسین اویلیبل تھی پچھلے کئی 3-4-5 مہینوں سے, تو ریگولر بیسس پہ اویلیبل تھی. دیکھو ہم نے لگوائی, آپ نے لگوائی, لیکن لوگ نہیں جا رہے تھے. پورا 24 گھنٹے سروس تھی اسی ایکسپو سینٹر میں. اب چونکہ گورنمنٹ نے تھوڑی سی سختی کی, آپ کی سم بلاک ہو جائے گی, آپ انٹرنیشنل ٹریول نہیں کر سکتے, روڈ پہ آپ کا سرٹیفکیٹ چیک ہوگا, اس وجہ سے یہ رش بڑھا ہے. نہیں بالکل, عوام بھی تو صحیح معنوں میں ساتھ یا ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے. عوام کے اوپر تو آپ نے ہر طرح سے بس سختیاں کی ہوئی ہیں نا, ریلیف کی طرف تو آپ آتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ایکسپیکٹڈ تھا نا, جب آپ سم کی پابندی لگائیں گے, جب آپ ان کو تنخواہ نہیں دیں گے تو بھائی کیا کریں گے, وہ تو جائیں گے پھر. تو اس کے لیے تیاری کیا کی, لیکن یہ کم پہلے ہو سکتا تھا نا. تیاری کیا کہ وہ ایک مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں, وہ بس گھومتے رہتے ہیں, کبھی لانڈی چلے جاتے ہیں, کبھی نیو کرائی چلے جاتے ہیں, اور کہتے ہیں سب اچھا. ایسی لوگ حکومتوں کو بٹھا دیتے ہیں, وہ سب اچھا کی رپورٹ دے کے. بھائی پورے کراچی میں 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی اور 11 سینٹر بنائے ہیں بقول حکومت کے, بتا رہا ہوں. تو 11 سینٹر کیسے کور کریں گے بھائی؟ یہ میں تو کہتا ہوں ہر UC کے اندر ایک, ان کو 209 UC ہیں پوری کراچی میں. اب تو آپ وہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اب موبائل انٹروڈیوس کروا دی ہے, وہ گھر گھر علاقوں میں جائے گی, آپ وہاں پہ بھی لگوا سکتے ہیں, سینٹرز بھی کھلے ہوئے ہیں. ظفیر بھائی آپ وزٹ کر لیں کسی سینٹر کا,
वहाँ पे कोरोना बचाव नहीं हो रहा, कोरोना फैलाव फैलाव हो मुहिम रहा चल है। रही नहीं, है इसमें तो वहाँ कोई शक नहीं। आप एक्सपो देख लें, ज्यादा हाँ, दूर नहीं, हाँ, करीब ही है, एक्सपो एक्सपो है। आज देख लें। लियारी के अंदर सुबह बुरा हाल था, खालिद देना हाल पे बुरा हाल था, न्यू कराची जो सेंटर बनाया वहाँ पे सुबह फॉर्म ही नहीं पहुंचे, लोग बाहर खड़े में, एक्सपो सेंटर का दरवाज़ा अच्छा, टूट गया। इसमें ये नहीं होना चाहिए था शमशाद भाई, ये भी तो हो सकता था ना कि आप थोड़ा सा मार्जिन देते कि ठीक है भाई 10 दिन के बाद हम आपकी सीम ब्लॉक करेंगे, 1 महीने के बाद हम आपकी सैलरीज रोकेंगे, ताकि लोगों का प्रेशर भी कम होता, लोग उस हिसाब से चीज़ों को मेंटेन भी मैंने कर। शुरू में कहा ना, अगर गवर्नमेंट का विजन हो, उसमें अहल लोग हों, वहाँ बैठे हुए हों। भाई यहाँ तो ना अहलों का टोला है जो सिंध के ऊपर काबिज हुआ हुआ है इस वक्त, और कराची के ऊपर ख़ास तौर पे काबिज हुआ हुआ है, और यहाँ पे इसको अपनी रियासत समझते हैं। ये असल में यहाँ बादशाहत चल रही है, यहाँ कोई जमहूरी उमूरी हुकूमत कुछ नहीं है। यहाँ पे इन्होंने अपनी एक रियासत कायम करी है, जो गुंडागर्दी इस हुकूमत ने फैलाई हुई है। नहीं, इंशाल्लाह रुकेंगे। पाक सरजमीन पार्टी जो है इस पर अपना लाहमल तैयार कर रही है, बहुत जल्द हम इंशाल्लाह हम आवाम के साथ खड़े हैं। जब हम ये देखें, जब हमने अल्ताफ़ हुसैन जैसे लोगों को गिराया, रॉ का मुकाबला किया हमने आके, तो पीपल्स पार्टी किया यार, जरदारी वो क्या। बात बिल्कुल आपकी ठीक है। अभी चूँकि अब आगे बल्दियात के इलेक्शंस होने थे जो कि अभी तक नज़र नहीं आ रहे कि होंगे या नहीं होंगे, और मुझे तो यही लगता है कि अगले 2 साल के बाद चूँकि जनरल इलेक्शंस आ जाएंगे 2023 के, तो वही होंगे, बल्दियात तो नहीं होगा। और अगर बल्दियात होते हैं तो ही कोई तब्दीली आ सकती है, तो ही कोई पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन बल्दियात इलेक्शन कराने में तो कोई भी हुकूमत इंटरेस्टेड नहीं होती। अच्छा, इसमें तमाम जो बड़ी पार्टियां, लेकिन चाहे वो तहरीक इंसाफ आपके हो, प्राइम नून मिनिस्टर लीग तो हो। कह रहे थे कि मैं तो यूरोप को मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझता, और मैं वहाँ की तरह का सिस्टम, बल्दियाती सिस्टम लेके आऊँगा ताकि पावर्स नीचे तक जाएँ और आम आवाम इससे फ़ायदा उठा सकें। देखिए ना, यहीं से तो वज़ीर आज़म के कौल फेल में तज़ाद भी नज़र आ जाता है ना। देखिए, अगर चलें सिंध में जो है ना बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ भी पीस पार्टी की हुकूमत है, वो नहीं केपी में कराना तो चाहती। होने चाहिए थे, भाई उन्होंने तो KPK बल्दियाती में तो सिस्टम ही आपकी खत्म कर हुकूमत है, दिया, वहाँ ख़त्म कर दिया। पंजाब में के कर दिया। 56,000 काउंसलर जो थे वो पिछले 2 साल से घर बैठे हुए हैं। और उन्होंने, अच्छा उसमें देखिए नून लीग की तरफ से भी कोई एहतजाज नहीं देखा होगा आपने। नहीं की नहीं नून लीग हमेशा कहती है वज़ीर आज़म के लिए कि मुझे क्यों निकाला। वो 56,000 बेचारे जो घर चले, उनके लिए कभी एक बयान, ना मरियम नवाज़ का, ना शहबाज शरीफ का, ना नवाज शरीफ का, किसी का बयान नहीं आता, इसलिए कि इनको सूट नहीं करता। वो सारे पैसे जो आते हैं ना बल्दिया के, वो सारे चाहते हैं गवर्नमेंट से, सूबाई गवर्नमेंट जो उसके पास रहे, वो अपनी मर्ज़ी से खर्च करे। निचली सतह तक तो ना ये इख्तियार देना चाहते हैं और ना ये फंड देना चाहते हैं, यही प्रॉब्लम है। जब इख्तियारात निचली सतह तक नहीं जाएंगे, फंड्स निचली सतह तक नहीं जाएंगे, तो तब्दीली कैसे आएगी? सही मानों में आम आवाम की जो छोटे छोटे काम है, मसाइल है, सारी ज़िंदगी वो गुजार देते हैं। MNA से तो उनका कोई काम पड़ता ही नहीं है, ना MPA से उनका कोई काम पड़ता है। जो UC लेवल के तो काम होते हैं आम आवाम के, और वो UC लेवल पे कोई अवेलेबल ही नहीं है, तो आवाम कहाँ जाए? एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है ना। देखें, गटर का ढक्कन लगाने का इख्तियार वज़ीर आला के पास है, कराची बिल्डिंग अथॉरिटी का जो इख्तियार है वो वज़ीर आला के पास है, कचरा साफ़ करने का इख्तियार है वो वज़ीर आला के पास है। भाई ये काम आपका तो नहीं है। आपको अगर कौमी असम्बली में भेजा है, अगर सूबाई असम्बली में भेजा है, तो वहाँ कानून साजी के लिए भेजा था, वो गटर साफ़ करने के लिए थोड़ी भेजा था। लेकिन आप ये देखें कि ये जो पिछली हुकूमतों की रीत थी वही PTI ने भी शुरू कर दी। अब अपने MNA को पहले कहते थे भाई इनको जो फ़ंड दिया जाता है ये सियासी रिश्वत है, और ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इमरान खान के बयानात मौजूद हैं अगर आप देखें, लेकिन अब फिर वो 40-40 करोड़ जो वो MNA वो इसलिए दे रहे हैं ना चूँकि सिंध हुकूमत कोई काम भी तो नहीं कर रही। इस पर बात करते हैं। मोहम्मद अली अजीज़ साहब ने ज्वाइन किया, MPA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं इस वक्त कोरोना को लेकर फिर सियासत हो रही है, सिंध हुकूमत तमाम तर मलबा जो है वो वफाकी हुकूमत पर डाल रही है। वफाक ये कह रहा है कि सिंध का ये काम था, सिंध जो है वो SOPs पे अमल दरामद भी नहीं करता, और हमारे जो अपनी वफाक की पॉलिसी है उसको भी टो करने में नाकाम है। लेकिन इस पूरे अमल में मोहम्मद अली अजीज़ साहब, आप चूँकि बिजनेसमैन भी हैं, आप समझते हैं कराची का बिज़नेस और कराची के आम आवाम जो हैं वो पिस रहे हैं, किस तरह देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। अब तो आवाज़ आ रही है? जी, हम सुन रहे हैं आपको। देखिए, इसमें जो लॉकडाउन वफाक जिस तरह वो कह रहे हैं जी कि NCOC ये मशावरत थी, ये तो बिल्कुल नहीं थी। वो तो असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने यही कहा था कि इस पर आप पूरा कंप्लीट लॉकडाउन ना करें, स्पार्ट लॉकडाउन करें। और आपने देख लिया कि उन्होंने जिस तरह लॉकडाउन करके पूरे सूबे सिंध को एक तरीके से कर्फ्यू की पोजीशन में ले गए, ताकि जबकि लॉकडाउन किया उसके बाद आपने अगले दिन देखा एक्सपो की पोजीशन क्या थी। एक्सपो सेंटर में बिल्कुल कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं, लोगों को इस तरीके से और खतरे में डाल दिया। अफरा तफरी फैल गई। डेली वेजेस के लोग हैं वो दुश्मन बने हुए। इसको इनको थोड़ा सा खुदा कॉफी दे, इनको बताए कि भाई आप लोगों ने तो पैसा लूट लाट के अपने घर से कमा लिया है। उन लोगों का तो सोचे जो डेली वेजेस के लोग कमाने वाले बेचारे हैं, खाने वाले हैं, वो क्या करें।
दुनिया ने अप्रिशिएट किया वजीर आज़म इमरान खान साहब का स्मार्ट लॉकडाउन, जो पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आ गया कि इतना बेहतर तरीके से। ये कौन सा तरीका? आज भी आप इस वक्त 7:40 हो रहे हैं शहर फैसल में, इस वक्त हाल देख लें आप क्या है। या तो ये करते हैं ना। अभी कोई आज मैं व्हाट्सएप पे सुन रहा था वजीर आला साहब का कि वो कह रहे थे पत्नी कोई शायद किसी की भर्ती आ रही है, क्या है कि वो जाना है शायद लाड़काना में कहाँ पे, कि जी ओपन मैदान में हम सब कुछ कर सकते हैं, अंदर कोरोना होता है। अपनी बारी में अंदर कोरोना है और जो खुद करना है तो उससे कोरोना नहीं है। सही। तो कमाल हो गया। मैं तो आज वो सुन के इनकी बातें कि डबल स्टैंडर्ड इन्होंने रखा हुआ है। अफसोस की बात है इनसे तो ये कि खुदा के वास्ते पहले भी आपने लॉकडाउन किया, ना लोगों को राशन पहुंचाया, ना कुछ, बुरा हाल हो गया। इस लॉकडाउन को खत्म करें। और ठीक, लेकिन इस पे आप चूंकि सिंध असेंबली में, जी आप सिंध असेंबली के मेंबर, जी मैंने कहा आप सिंध असेंबली में बैठे, इनकी तवज्जो दिलाए ना इस तरफ के आप। अब तो पहले भी कह चुके हैं कि आप हमें देखिए, कराची में पीटीआई का मैंडेट है। मैं इनको पहले भी कह चुका हूँ कि आप हमें हमारे एरिया में, हम जानते हैं अपने एरिया को आपसे बेहतर। हर एमपीए चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे पीटीआई का हो, चाहे एमक्यूएम का हो, वो अपने एरिया को बेहतर जानता है। बिल्कुल। आप हमें ऑन बोर्ड करें, आप ऑन बोर्ड करें। हम क्यों नहीं आपके साथ मिलके आपकी हेल्प करेंगे उस पर, एसओपी के ऊपर। आपने ऑन बोर्ड ही नहीं करना, आपने ना देखना ना कुछ, आप बस बंद कर दो सब कुछ। बंद करना इज नॉट द सोल्यूशन, बट बंद करने से तो और लोगों को आपने परेशान कर दिया। बिल्कुल यही बात है। हकीकत में इस वक्त आपको आइडिया नहीं है कि लोग कितने परेशान है। जो रोजाना कमा के खाने वाला है, क्या ये पहुंचा रहे? नहीं पहुंचा रहे। मोहम्मद अली साहब, यही चीज हो रही थी। शमशाद अहमद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है पीएसपी से, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने लॉकडाउन लगाना था तो आप एक शेड्यूल का ऐलान करते, आपने इमरजेंसी लगाई और अफरा तफरी फैल गई। आप देखें क्या हाल है। कोई आप इस वक्त आज भी आप देखें, अब फिर आपने अगर लॉकडाउन करना था और एक दफा और आपने कह दिया कि हम मोबाइल फोन सिम बंद कर देंगे। अरे भाई, जो वफाक ने आपको मेडिसिन दी, इंजेक्शन दिए, क्या वो इतने थे आपके पास? तो फिर आप लॉकडाउन करते या मेंशन करते कि जी हम सिम भी बंद कर देंगे लोगों के। कितना तादाद में लोग वहाँ पहुँच गए, वहाँ पे पता चला जी इंजेक्शन ही नहीं, खत्म हो गए। ये तो इनके हालात हैं। इस पे ये वो कह रहे हैं मोहम्मद अली अजीज साहब, इस पे वो ये कह रहे हैं कि चूंकि वफाक का काम है सूबे को वैक्सीन प्रोवाइड करना, तो आप वैक्सीन प्रोवाइड करने में नाकाम रहे, ये इल्जाम लगा रही है। भाई ये तो हर चीज में सूबे का ही वफाक के ऊपर ही लगाते हैं। इन्होंने कितनी खरीदी, क्यों नहीं खरीदते को मना किया है? सूबे खरीद रहे ना, अभी तक तो इनको वफाक ही दे रहा है। ये जो करप्शन में अपना पैसा ले जाते हैं और वो खुदा के लिए लोगों के लिए सोचे, उन पैसों से वैक्सीन खरीदे लोगों के लिए। किसने रोका है इनको? ये तो वफाक ने जो दे रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि सिंध में जितने लोगों को लग गया, ये तो वफाक की मेहरबानी कि वफाक ने जितने लोगों को लगा दिया। ये ना तो ये भी नहीं करते। इन्होंने तो आज तक नहीं ली वैक्सीन। खरीदे, इनको चाहिए खरीदे भाई, इतना पैसा आता है, खरीदे। आप लोगों के लिए सोचे, बातें करवा ले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहम्मद अली साहब, आप लाइन करिएगा। शमशाद अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बात कर रही है, कम अज़ कम इनका ये नैरेटिव तो समझ आता है कि आप थोड़े से राइट्स दें, ऑन बोर्ड लें। कराची से जो जीते हुए MP MNAs हैं वो अपने हल्कों में आपके साथ खड़े होंगे ताकि वैक्सीन हो सके, लोगों को एतमाद में लिया जा सके। खौफ और हरास से तो किसी का हार्ट अटैक होकर जान चली जाएगी, जो तरीक़ाकार अपनाया सिंध हुकूमत ने। नहीं, बिल्कुल ये भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए 18वीं तरमीम के बाद वैसे भी जो ये हेल्थ का शोबा है, ये सूबाई हुकूमत के पास आ चुका है और किसी ने इनको नहीं रोका। और ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है इनकी कि जितनी भी वैक्सीन आ रही है वो इस वक्त सेंट्रल से आ रही है, वफाक इनको दे रहा है। और इन्होंने सिर्फ एक काम किया था कि 6 अरब रुपए मख्तस किए थे कि भाई इसका हम राशन देंगे। ठीक है, मुझे तो 6 आदमी नज़र नहीं आए जिनको इन्होंने राशन पता नहीं कहाँ बटा, पता नहीं कहाँ बढ़ गया, अपने लोगों में जाके बांट दिया या बांटा भी है ये नहीं। अच्छा, स्टेक होल्डर को तो ये इसीलिए जी भी मैं बताऊं, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ भाई की बात पे। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। इन्होंने क्या किया, मेरा हल्का लाइन एरिया खुदाबाद कॉलोनी पीसी से सारा है, ठीक है। हमने जब लिस्टें बनाई, हमें डीसी का फोन आया कि जी आप लिस्टें बना लें। मैंने कहा जी हम लिस्टें, वो तो शुक्र है कि हमें वफाक से गवर्नर साहब ने यूटिलिटी से हमें सब MPS को 3-3 हज़ार बैग दिए, लेकिन वो 3-3 हज़ार बैग भी पूरा नहीं हो रहा था, पूरे कराची के MPS को दिए। इन्होंने कहा, DC ने कहा हमें, DC ईस्ट, उन्होंने कहा जी आप लिस्टें बना लें, हम बाइकिया के थ्रू सबको पहुँचा दें। ठीक।
ने जी 30,000 लोगों की लिस्ट बना के इनको दे दी। ये मैं पिछले लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ आपसे। जी जी बिल्कुल। फिर मैंने डीसी साहब से पूछा क्या हुआ, एक हफ्ते बाद उन्होंने कहा जी हमने मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर अपने बंदे भेजे कोई 50 घरों में, किसी एक घर में भी राशन नहीं मिला, वो पैसा भी खा गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सब यही कह रहे हैं कि राशन नहीं मिला और वाकईतन ऐसा ही हुआ और रातों रात पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने बांट दिया बकौल उनके, लेकिन सही मानों में नहीं बटा। और अभी वैक्सीन पे भी यही इशू हो रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट उनके पास है, ये प्योरली उनका काम था। पिछले 3 महीने उनके पास फ्री थे, वो प्रॉपर कैंपेन चलाते, लोगों को वैक्सीन करवाते, लेकिन नहीं करवाया। अचानक ये दर्द उनके दिलों में क्यों उठ पड़ा शमशाद साहब? भाई देखिए, मैं तो इसका पूरी तरह से ज़िम्मेदार जो है ना सूबाई हुकूमत को समझता हूँ, और ख़ास तौर पे मेरा तो हमारा ये मुतालबा है कि ये जो हेल्थ मिनिस्टर है इसको रिज़ाइन करना चाहिए। सही। क्योंकि पाकिस्तान में कहीं भी इस तेज़ी से नहीं बढ़ा, इसका मतलब ये इसको रोकने में नाकाम हुए ना। फिर ठीक, जब इन्होंने ये लॉकडाउन जब हल्का हुआ था तो उसके बाद SOP पे अमल इन्होंने कराया नहीं बिल्कुल। सही। अब पूरी दुनिया का कारोबार इन्होंने रोक दिया। भाई दुनिया में इस वक्त कारोबार खुल रहे हैं, लॉकडाउन जो है वो खोला जा रहा है। आज तो अमेरिका ने भी कह दिया कि लॉकडाउन नहीं लगा दिया। भाई अब देखें, जैसे शादी हाल का ही मसला है, उन वहाँ को बेचारों को, उनको कितने अरसे से वो वैसे ही बेरोजगार थे। अच्छा, उनसे कितने रिलेटेड दूसरे लोग होते हैं, खाना पकाने वाले होते हैं, वेटर्स होते हैं, वो भाई आप उस पर SOP पे अमल कराएं ना अपना। ठीक है, वहाँ गेट पे कोई स्कैनर लगा दें, उनका सर्टिफिकेट चेक कर लें, लेकिन कोई ना कोई, लेकिन उसका अहल लोग बैठे हैं। और ये भाई ने सही कहा कि भाई तमाम स्टेक होल्डर जो हैं, जब तक लोग को अच्छा ये सबको लेके इसलिए नहीं बैठते कि वो उसमें फिर फंड का मसला होता है, उसमें कमीशनों का मसला होता है। इसलिए मैं तो भाई इसको एक तासुब ज़्यादा हुकूमत कहता हूँ, और पूरी जिम्मेदारी जब तक कराची के लोग, अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि इनको उठना होगा एहतजाज के लिए, और पाक सरजमीन पार्टी इंशाल्लाह बहुत जल्द लाएअमल देगी। ठीक है मोहम्मद अली अजीज साहब, किस तरह देखते हैं? एक ये थ्योरी भी अभी शमशाद साहब से भी हम डिस्कस कर रहे थे, आपसे पहले हीर सोखत थी हमारे साथ लाइन पे। बिलावल के दौरा अमेरिका के बाद ये डेवलपमेंट्स होती हैं, कहें इनको भी ये नज़र आ रहा है कि कहें तासुब का शिकार है सिंध हुकूमत, और खाली कराची ही क्यों फोकस किया जाता है? और अब जब इकॉनमी बेहतर हो रही थी, कराची के हालात बेहतर हो रहे थे, पूरे मुल्क के हालात बेहतर हो रहे थे, और अचानक स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन, यानी वो स्मार्ट लॉकडाउन इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं, वो भी पॉसिबल था, लेकिन अचानक ये भगदड़ मचा दी और लोग परेशान हो गए। आप समझते हैं कि इसके पीछे कोई साजिशी थ्योरी है? मोहम्मद अली अजीज साहब, मोहम्मद अली अजीज साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी मोहम्मद अली अजीज साहब तक आवाज़ नहीं आ रही। आखिरी मैं चाहूँगा कि आप इसको वाइंड अप करेंगे। ज़फ़ीर भाई, बड़ी मज़ा का खेज़ सूरत हाल है। जैसा आपने कहा कि बस कराची में यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव पे ठट्टा चले जाए तो वहाँ नहीं है। सेवन शरीफ में अभी वज़ीर आला गए थे, नहीं है, हज़ारों लोग हैदराबाद खुला हुआ है पूरा। बिलावल भुट्टो साहब जो है ना अभी कश्मीर जाते हैं, इतने बड़े बड़े जलसा कहते हैं। भाई ये कोरोना क्या सिर्फ ये लियाकताबाद, न्यू कराची, लांडी, औरंगी के लिए रह गया है, बाकी जगह कहीं नज़र नहीं आता। तो ये तासुब ज़्यादा हुकूमत है सर, इससे जान छुड़ानी होगी। ये बड़ा जुल्म कर रही है कराची वालों पे, और ख़ास तौर पे यहाँ की मईशत इन्होंने तबाह कर दी। और फिर और अब मेरा ख्याल है कि जो वफाकी गवर्नमेंट है उसको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। मैं देख रहा था वज़ीर-ए-आज़म कह रहे थे कि यार ये जो लॉकडाउन किया सही नहीं किया, सिर्फ कहने से थोड़ी होता। भाई आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इजलास भी तलब किया, आप देखते हैं कि क्या कहते हैं। उन्होंने इजलास तलब किया, लेकिन कोई अमली कदम भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शमशाद अहमद सिद्दीकी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जनाब मोहम्मद अली अजीज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और इसमें कोई शक नहीं, थोड़ा सा फोकस करना होगा कराची पे, और वज़ीर-ए-आज़म को स्टैंड लेना होगा। वज़ीर-ए-आज़म कहते थे कि, और ख़ुद कराची वालों ने उनको वोट दिए, वो कराची से वज़ीर-ए-आज़म बने। अब वक्त आ गया है कि कराची वालों पे रहम किया जाए। कभी कोरोना और कभी बारिश कराची के अरमानों को ले डूबती है, और कराची वालों का ख्याल करना होगा, चूँकि कराची 90% सूबे को और 70% वफाक को रेवन्यू देता है, और कम से कम इस रेवन्यू का मान ही रखें, और कराची वालों का जो दुख है उसमें कम से कम कुछ तो ख्याल करें, ताकि कराची आगे बढ़ सके, कराची के आम आवाम तरक्की की तरफ वापस आ सके। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।